स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 में से। तो चैप्टर 2 यहाँ से स्टार्ट करना है। आप में से कोई रीड करना स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से लेकर के नीचे तक। आज कौन रीड करेंगे? कोई नया डिवोटी रीड कर सकते हैं। जो जितेंद्र तो करते रहते हैं। हम्म। We are spirit soul, and as such we are eternal. Why then should we subject ourselves to birth and death? One who asks this question is to be considered intelligent. Those who are Krishna conscious are very intelligent because they are not interested in gaining entrance to any planet where there is death. They will reject a long duration of life in order to attain a body like God's. Uh, That means eternal or means full of knowledge, and Tanada means full of pleasure. Krishna is the reservoir of all pleasure. If we transfer ourselves from this body into the spiritual world, either to Krishna Lok, Krishna's planet, or any other spiritual planet, we will into the spiritual planet, either to Krishna Lok planets or any other spiritual planet, we will receive a similar Satchidanand body. Thus, the aim of those who are in Krishna consciousness is different from those who are trying to promote themselves to higher planet within this material world. The self or soul of the individual in a minute spiritual sprang. The perfection of yoga lies in the transferal of this spiritual spark to the top of the head. Having attained this, the yogi can transfer himself to any other planet in the material world according to his desire. If the yogi is curious to know what the moon is like, he can transfer himself there. Or if he is interested in higher planet, he can transfer himself there. Just as traveler go to New York, Canada, or other city of Earth, whatever one goes on Earth, he finds the same visa or and customs system operating and done.
And on all the material planets, one can similarly see the planet of birth, old age, disease, and death operating. अरे लास्ट ये पढ़ लो। Om Itya Ekash Ekdarshkam Brahma. At the point of death of the yogi, can produce Om Omkara, the concise form of transcendental sound vibration. If the yogi can vibrate the sound and at that same time remember Krishna or Vishnu, he attains the highest goal. If it is the process of yoga to concentrate the mind on Vishnu, the impersonalist imagine some form of the Supreme Lord, but the personalist do not imagine this. They actually see whether one imagine him or actually sees him or has to concentrate his mind on the personal form of Krishna. तक आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें दो तीन चीज़ों की बातें हुई। क्या क्या बातें हुई? तो हिमांशु, आप वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें बात हुई कि जो भगवान का भक्त होता है वो स्वर्ग में जाने की इच्छा नहीं रखता, हेवनली प्लैनेट जाना, जैसे इंद्र लोग जाना, वहाँ पे बहुत सारे अप्सराएं होती है, गंधर्व लोग जाना, वहाँ बहुत सारे सिंगर्स होते हैं, सिद्ध सिद्ध लोग जाना, वहाँ पे सारी अष्ट सिद्धि प्रेजेंट होती है लोगों के पास। बहुत सारे ऐसे स्वर मतलब हायर प्लानिटरी सिस्टम्स होते हैं, वहाँ पे अलग अलग टाइप के एंजॉयमेंट होते हैं। हेवनली प्लैनेट्स में एंजॉयमेंट मिलता है अलग अलग प्रकार का, और वहाँ पे बॉडी भी बहुत स्ट्रांग होती है। तो जो भगवान का भक्त होता है वो इच्छा नहीं रखता यहाँ सब जाने का। वो क्या इच्छा रखता है? मुझे तो सिर्फ भगवान को प्राप्त करना है और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो हम एज अ ह्यूमन बीइंग, बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो आर्टिफिशियली ट्राई करते हैं अलग अलग प्लैनेट्स में जाने का, मार्स में जाने का, मून में जाने का, अलग अलग प्लैनेट्स में जाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारे वैदिक टाइम्स में जो सिद्ध पुरुष होते थे, वो लोग जब शरीर छोड़ते टाइम जो अ, उनकी आत्मा जिस मतलब अगर सर से निकलती है तो अलग मतलब उनकी इच्छा के अनुसार वो कहीं भी जा सकते थे। और ये भगवत गीता में भी इसका श्लोक आता है कि अलग अलग देवी देवता होते हैं, अलग अलग, जैसे मून प्लैनेट में है ना चंद्रलोक में चंद्रदेव, है ना, और सन प्लैनेट में सूर्यदेव। सूर्यदेव का नाम क्या है? विवस्वान। तो अलग अलग प्लैनेट्स होते हैं और वहाँ के अलग अलग देवता होते हैं, और उनकी अगर कोई पूजा करता है तो वो वहाँ पे पहुँच सकता है। जैसे इस श्लोक में क्या बताया गया? यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद् याजिनोऽपि माम्। तो जो देवी देवताओं की पूजा करेगा तो वो देवी देवताओं को प्राप्त करेगा, उनके लोक में जाके रहेगा। इंद्र की पूजा करेंगे तो इंद्र लोक जाके रहेंगे उसके साथ। दोज हु वर्शिप द एंसेस्टर्स गो टू द एंसेस्टर्स। जो अपने पितरों की पूजा करेगा जीवन भर तो वो पितृलोक में जाएगा। जो भूत पिशाच की पूजा करेगा वो वैसे टाइप के, है ना, हाँ, भूतानी यान्ति भूतेज्य, वैसे टाइप का शरीर प्राप्त करेगा। और आखिरी में भगवान क्या बोले? और जो मेरी पूजा करेगा वो मेरे साथ रहेगा। तो जो मटेरियलिस्ट होते हैं या फिर जो बहुत तमोगुण रजोगुण में होते हैं, उनके पास बहुत सारी अलग अलग प्रकार की इच्छाएं होती हैं। रजोगुण में अलग प्रकार की इच्छाएं होती है, तमोगुण में अलग प्रकार की इच्छाएं होती है। तो उस प्रकार अपनी इच्छाओं के अनुसार वो अपनी देवी देवताओं को पूजा करते हैं इच्छाएं पूरी करने के लिए, और इस प्रकार से वो उनको प्राप्त करते हैं। और वो सब टेम्पररी होता है।
अभी ये जो हमने पढ़ा था चैप्टर 2 में बुक से, कि वो इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर में ही आता है। ये जो भी लोग हैं, हेवनली प्लैनेट्स हैं, इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर ही आता है ना। तो टोटल 14 प्लानिटरी सिस्टम्स होते हैं। 7 ऊपर होते हैं, 7 नीचे होते हैं। हाँ, ब्लैक मैजिक वही है, काला जादू, ये सब। हाँ, उसमें दिया। काला ब्लैक मैजिक भी होता है और वाइट मैजिक भी होता है। तो वाइट मैजिक सही काम के लिए यूज होता है। ब्लैक मैजिक किसी को परेशान करने के लिए यूज होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्लैनेट्स में लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं। लेकिन ये सब मटेरियल वर्ल्ड के अंदर ही आता है। अगर आप हेवनली प्लैनेट्स चले भी गए, तो जब तक आपके पास वो पुण्य है, तब तक आप वहां पे रह सकते हैं, बाद में आपका फॉल डाउन हो जाता है। लेकिन डिवोटी बहुत इंटेलिजेंट होता है, वो क्या सोचता है कि ये सब तो टेम्परेरी है, और इसमें तो भगवान से कोई रिलेशन नहीं है ना, सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए जाया जा रहा है। तो वो बहुत इंटेलिजेंट होता है और सोचता है कि मैं तो भगवान के पास जाऊंगा सीधा। और कैसे जाता है, इस श्लोक में बताया गया। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः। ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। एंड whoever at the end of his life quits his body, remembering me alone, at once attain my nature, of this there is no doubt। जो मृत्यु के समय अंत काले क्षमा हुए, अंत काल में माम एवा, मुझे स्मरण करता है, मुक्तवा कलेवरम, तो जब कलेवरम, जब मृत्यु का समय आता है, जब शरीर को छोड़ता है वो, तो क्या होता है, भगवान को स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, तो वो भगवान को प्राप्त करता है, और उनके जैसा ही अ, उसको भगवान के धाम में एंट्री मिलती है, और वैसा ही उससे स्पिरिचुअल बॉडी प्रोवाइड होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी हम रीड किया था हमारे। हाँ, if we transfer ourselves from this body into the spiritual world, either to Krishna Loka, Krishna's planet, or any other spiritual planet, we will receive a similar Sachidanand body। तो भगवान राम का कौन सा प्लेनेट है, किसी को पता है, कौन सा धाम है? सूर्या बताएंगे। हाँ, भगवान राम का साकेत धाम है ना, तो बादल बता रहे हैं। तो भगवान राम सरयू नदी से सबको साकेत धाम ले गए। तो मैं भी अभी अयोध्या जाने वाला हूँ 29 मार्च में, मोहन गौचंद्र जी के साथ जा रहा हूँ। तो सरयू रिवर, हम पिछले साल भी कैंप किए थे, अयोध्या कैंप। तो उस टाइम उतना रश नहीं था, लेकिन अभी तो बहुत ज्यादा रश है, टिकट्स भी अवेलेबल नहीं है। आप जाने का प्रयास, अकेले जा सकते हैं, कैंप करना तो बहुत मुश्किल है अभी के समय में। थोड़ा लेट हम प्रयास करेंगे आप सबके लिए कैंप करने का अयोध्या में। तो इस प्रकार से जो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, उसको टॉप मोस्ट प्लेनेट गोलोक वृंदावन, कि कृष्ण लोक जिसे कहते हैं, वो प्राप्त होता है। और जो राम भक्त होते हैं, उन्हें साकेत धाम प्राप्त होता है। तो उस प्रकार से उन्हें शरीर वहां मिलता है। तो अंत काले च मामेवा, अंत काल में हम कैसे स्मरण कर पाएंगे? ऐसा है क्या, जब मरने वाला हूं तो तुरंत प्रोएक्टिव हो करके भगवान को स्मरण करने लग गया, और फिर भगवान को स्मरण करते करते छोड़ दिया? तो शॉर्टकट है ना। अभी भक्ति करने की क्या जरूरत है, आखिरी समय आएगा भगवान को स्मरण कर लूंगा तुरंत। लेकिन ऐसा नहीं है। हम जीवन भर जो एक्टिविटीज करते हैं, जो संस्कार हम अपने मन में पालते हैं, जैसा सबकॉन्शियस माइंड में हम एंटर कराते हैं, तो जो भी एक्टिविटीज आप जिंदगी भर करेंगे, वही अंत समय में आपको याद आएगा।
आप में से किसी का छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ है? हुआ है? कभी एक्सीडेंट किसी का छोटा मोटा? संजय का हुआ है? क्या हो गया था संजय? यस सर, वो लिटिल फिंगर होती है ना, वो पूरा हड्डी बाहर आ गई थी एक्सीडेंट में। अच्छा, बाहर आ गई थी। तो हम्म। उस समय आपको क्या याद आ रहा था? उस समय नहीं, ऐसे तो कुछ याद नहीं आ रहा था, बहुत दर्द हो रहा था। अनकॉन्शियस से हो गए थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें, है ना? ये लगभग 3 साल पहले की बात है, वो भी ठंडियों का टाइम था। हाँ। भगवान का कुछ दूर दूर तक कोई रिलेशन था? भगवान कुछ याद है कुछ? नहीं आते ना? वो टाइम पे तो नहीं था सर। हाँ, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। तो कौशल जी पूछ रहे हैं सूर्यदेव को हमें जल देना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि सूर्यदेव क्या है? वो भगवान की आंख है। तो इस पूरे यूनिवर्स को हम भगवान के रिलेशन में देख सकते हैं, श्रीमद् भागवतम में पूरा डिस्क्रिप्शन है। तो सूर्यदेव जो है भगवान की आंख है, इसलिए हम सूर्यदेव को पानी देते हैं, सुबह उठ के सूर्यदेव को प्रणाम भी करते हैं। अभी कुरुक्षेत्र में 15-20 दिन निकल गए, धूप नहीं आ रहा था, कल धूप निकला था, है ना? तो जब धूप निकला तो सब लोग सूर्यदेव को प्रणाम करने निकल गए। क्योंकि 15 दिन से सब परेशान थे। और पानीपत में निकला था धूप, शुभम प्रभु, कितने दिन हो गए थे? आवाज नहीं आ रही है आपकी। अभी यहाँ ठंड तो होती है, बट दिन में धूप निकल आती है थोड़ी सी, थोड़ी देर के लिए, पर ठंड है। ठंड है, अच्छा। यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं आ रही थी। तो सूर्यदेव को हम बिल्कुल जल चढ़ाना चाहिए। ठीक है। तो सबको हम तो संजय जैसे बोल रहे थे कि कभी हमारा, हमें पता नहीं कब कब हम मर सकते हैं। सिचुएशन बहुत खराब है। परीक्षित महाराज को कम से कम पता था कि कब उनकी मृत्यु होगी, ना 1 हफ्ते के बाद अ, उनकी उनको सर्प काटेगा, फिर उनकी मृत्यु होगी, उनको पता चल गया था। लेकिन हम सबको नहीं पता अगले दिन सो के उठेंगे कि नहीं उठेंगे, पता नहीं। तो इसलिए अंत काले च मामेव, अगर कोई जीवन भर भगवान की भक्ति करता है और बहुत अच्छे से करता है, बिना कुछ कुछ गलतियां करते हुए, बिना कुछ पर्सनल मोटिव के, है ना? तो आखिरी समय में पॉसिबिलिटी है कि भगवान याद आ जाए, ये श्योरिटी भी नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे आचार्यस कहते हैं कि अगर रेगुलर बेसिस पे कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है ना, श्रीमद् भागवतम का रेगुलर क्लास करता है, और शास्त्रों का अध्ययन करता है, और दिन भर भगवान की सेवा में लगे रहता है, अपना जीवन भगवान को समर्पित कर देता है, तो आखिरी समय में भगवान ध्यान रखते हैं, है ना, उस भक्त का। आखिरी समय में भगवान खुद अपने भक्त के माइंड में एंटर कर जाते हैं, जबरदस्ती उसको स्मरण करवाते हैं, अगर भगवान किसी से बहुत ज्यादा प्रसन्न है तो। और हमारे आचार्य ऐसा भी कहते हैं कि ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, अगर आप जीवन भर भगवान की सेवा किए हैं और जिन जीवन भर भक्ति किए हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है, ना कि आखिरी टाइम पे बस स्मरण करने की इच्छा है, स्मरण हो जाए, स्मरण हो जाए, वो अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? जीवन भर हम भगवान की सेवा करें, भगवान की भक्ति करें, तो जाके आखिरी में पॉसिबल होगा। जीवन भर अगर आप बिजनेस करेंगे, दिन भर 24 घंटे बिजनेस के बारे में सोचेंगे, तो मृत्यु के समय भी आपको बिजनेस ही आएगा। एक बार एक प्रभुपाद जी के समय में प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक व्यक्ति था जो हॉस्पिटल में बहुत डॉक्टर को प्रार्थना कर रहा था, गिड़गिड़ा रहा था कि 4 साल मुझे और बचा लो जिंदा, ना 4 साल बस और बचा लो, मैं अपना ये काम खत्म करके फिर मरना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से बहुत सारी इच्छाएं बच जाती है, ये भी कर लिया होता, आखिरी में सबको रिग्रेट होता है, अपने बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा,
ये सभी अटैचमेंट्स, जो आपका अटैचमेंट है उसी वही चीज़ आपको मृत्यु के समय याद आएगी। स्पेशली जब मृत्यु आती है, 40,000 बिच्छू काटने का जब दर्द हो रहा होता है, उस समय जो सच में भगवान की भक्ति किया है सीरियसली, वो भगवान को स्मरण कर सकता है। और भगवान को स्मरण करने से रिलेशन में यहाँ पे एक और चीज़ बताई गई, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्मा। तो आप सब अब के सब अंदर के डाउट, अंदर हरे कृष्णा, कृष्ण माइक ऑन रहेगी। आप सबको डाउट होता है कि कभी हम ओम चैंटिंग क्यों नहीं करते, है ना? ओम ऐसा चैंटिंग होता है ना। मैं बचपन में, मतलब हाँ, बचपन में मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो मैं कुछ भी मूवीज वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं था घर में ना। मॉल मॉल तो कभी लेके नहीं गए फादर, रेस्टोरेंट वगैरह भी नहीं ले जाते थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे। और टीवी लगाए थे एक बार, तो टीवी में भी कुछ हम, जो डिश वो होता है ना, डिश वायर होता है ना, केबल टीवी था। तो केबल टीवी को एंटीना में थोड़ा, एंटीना वाला होता है टीवी, एंटीना वाला जो जितना सिग्नल आ गया उतना चलता था। तो हमारे घर के ऊपर से एक केबल निकलती थी, वो डिश टीवी वाली केबल। तो मैं और मेरे भाई ने केबल को थोड़ा सा काट करके हमारे एंटीना में थोड़ा टच करा दिया था। तो बहुत सारे चैनल आने लग जाते थे, अलग अलग कार्टून्स वाले चैनल। तो इस प्रकार से थोड़ा बहुत उसमें भी ज़्यादा फादर के सामने ज़्यादा देख लेते थे तो बहुत मार पड़ती थी। फिर फादर एक बार कंप्यूटर लेके आए, ये लोग कुछ सीखेंगे। तो मैं और मेरे जो भैया थे दोनों मिल करके दिन भर कंप्यूटर गेम्स खेलने लग गए। तो मेरे फादर ने क्या किया, वो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। तो एक दिन उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, ये लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते। तो वो सीपीयू को पूरा तोड़ दिए, और सारे गेम की सीडी डीवीडी उसको भी पूरा हथौड़े से तोड़ दी। और बहुत खतरनाक माहौल हो गया था। उसके बाद से फिर मोबाइल फ़ोन्स भी हमें, मुझे मतलब बहुत लेट ही मिला। 12th में फिर मिला था मोबाइल फ़ोन, उसके पहले तो वो भी नहीं था। और घर से स्कूल, स्कूल से घर, बहुत स्ट्रिक्ट थे, है ना, ताकि बिगड़ना चाहिए लोग। फिर भी बिगड़ने वाले तो बिगड़ जाते हैं। फिर जैसे तैसे भक्ति भक्ति में आए कॉलेज में। कॉलेज में आए जब, सब लोग रात भर जागते थे, लेकिन मुझे तो आदत थी रात को जल्दी सो जाने की, मुझे बहुत दिक्कत होती थी। फिर भक्तों का संग मिला कॉलेज में, फिर यहाँ पे बहुत अच्छा स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट है भक्तों के संग में, कुरुक्षेत्र में। तो इससे रिलेटेड मैं कहना चाह रहा था कि हाँ, बचपन में फादर मुझे ओम चैंटिंग कराते थे। तो ऑलमोस्ट 10 साल तक मैंने ओम चैंटिंग किया होगा रेगुलर बेसिस पे। तो इसमें भगवान बता रहे हैं, ओम इति एकाक्षरा ब्रह्मा। At the point of death, the yogi can pronounce Om Omkar, the concise form of transcendental sound vibration. है ना? If the yogi can vibrate this sound at the same time, remember Krishna or Vishnu, Mam Anusmaran, he attains the highest goal. It is the process of yoga to concentrate the mind on Vishnu. तो ओम चैंटिंग करना चाहिए या हरे कृष्णा चैंटिंग करना चाहिए, उसके रिलेशन में हम थोड़ा कंफ्यूजन अपना दूर कर लेते हैं। तो ओम से रिलेटेड भगवत गीता में श्लोक आता है, ये जो अभी कोट हुआ था चैप्टर में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्मा व्याहरन मान अनुस्मरन यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। After being situated in this yoga practice and vibrating the sacred syllable Om, the supreme combination of letters, if one thinks of the supreme personality of Godhead and quits his body, he will certainly reach the spiritual planets. तो भगवान का एक नाम है ओम। तो भगवान को रियलाइज करने के 3 स्टेजेस होते हैं, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। तो ये जो ओम है, ये ब्रह्मन को रिप्रेजेंट करता है। ब्रह्मन मतलब एक भगवान है, उन भगवान से जो जो तेज निकलता है, जो इफल्जेंस निकलता है,
भगवान कृष्ण में से जो इफल्जेंस निकलता है उसको बोलते हैं ब्रह्मन, और वो ओम से रिप्रेजेंट होता है। द इम्पर्सनल साउंड ऑफ कृष्णा इज ओम, बट द साउंड हरे कृष्णा कंटेन्स ओम। अरे ऐसा कैसे बोल दिया? ओम, हरे कृष्णा के अंदर ओम ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? द चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्णा मंत्र इज क्लियरली रिकमेंडेड फॉर दिस एज। ना, किसने रिकमेंड किया है हरे कृष्णा महामंत्र को? चैतन्य महाप्रभु ने, जो कली संतरण उपनिषद में, ये शास्त्रों में हमारे आता है, ये हरे कृष्ण महामंत्र बीज मंत्र है ये। सो इफ वन क्विट्स दिस बॉडी एट द एंड ऑफ लाइफ चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, he certainly reaches one of the spiritual planets according to the mode of his practice। तो प्रभुपाद जी अश्योर कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे अगर कोई 16 माला का जप करता है तो मृत्यु के समय में भी आसानी से वो भगवान को स्मरण कर पाएगा। The devotees of Krishna enter the Krishna planet Golok Vrindavan। For the personalist, there are also innumerable other planets known as Vaikuntha planets in the spiritual sky, whereas तो जो पर्सनलिस्ट हैं, भगवान के रूप में मानते हैं, वो वैकुंठ जाते हैं, और जो इम्पर्सनलिस्ट हैं, जो भगवान के तेज को बस मानते हैं, तो वो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। अरे जो ब्रह्म ज्योति क्या है? अभी भी जैसे वो चल रहा है ना, हाँ, आप देख रहे होंगे कि जो 4 शंकराचार्य हैं वो राम मंदिर ओपनिंग में नहीं आएंगे बोल रहे। तो जो 4 शंकराचार्य हैं, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट्स, उनकी फिलॉसफी क्या है शंकराचार्य की? कि सब कुछ, भगवान का कोई रूप नहीं होता, भगवान का कोई हाथ पैर कान नाक मुंह नहीं होता है? तो भगवान का कोई फॉर्म नहीं होता, भगवान क्या है? निराकार है। और जो पर्सनलिस्ट हैं, जो एक जो अभी राम मंदिर टेम्पल ओपनिंग है, जो बागेश्वर धाम सरकार के जो गुरु हैं, जानते हैं आप क्या नाम है उनका? राम भद्राचार्य। राम भद्राचार्य जी। तो वो पर्सनलिस्ट हैं, भगवान राम के बहुत भक्त हैं, पर्सनल फॉर्म में मानते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनश चेतना नाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान, ऐसे करके वो एस्टैब्लिश भी करते हैं रामानुजाचार्य जी को कोट करते हुए, बहुत सारा खंडन करते हैं ये फिलोसफी का। तो उन ये जब क्रिएशन हुआ था उस टाइम से ये दो फिलोसफीज हैं, दोनों में आपस में झगड़ा पहले से शुरू से ही हो रहा है। और अभी भी आप देखेंगे कि राम भद्राचार्य जी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो शंकराचार्य है ना उतना आ नहीं रहे, नाराज हो रहे हैं कि हमें मौका दिया जाए प्राण प्रतिष्ठा करने का, और अलग अलग बातें कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवत गीता में सीधी सीधी बात हुई है, ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम, कि जो ब्राह्मण है उसका बेसिस कौन है? प्रतिष्ठा अहम, मेरे से ही ये ब्रह्म तेज निकलता है। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि मेरे से ही ये जो ब्रह्म तेज है, जिसको आप निराकार ब्रह्म के रूप में पूजा करते हैं, ये मेरे से ही निकलता है, जो इमॉर्टल है, इम्पेरिशेबल है, इटर्नल है, और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ अल्टीमेट हैप्पीनेस ना, जो ब्रह्म सुख मिलता है आपको, ये मेरा ही इफल्जेंस है। तो ये ओम किसको रिप्रेजेंट करता है? ये ब्रह्म तेज को रिप्रेजेंट करता है, भगवान के। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी बोले कि हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर ओम वैसे ही प्रेजेंट है, ऑलरेडी प्रेजेंट है। कैसे इसको प्रूफ कर सकते हैं आप? अभी तक इतना जितना आप नॉलेज जानते हैं, कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको? हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर ओम ऑलरेडी प्रेजेंट है। प्रभु जी होता क्या ना, अकॉर्डिंग टू मी, पता नहीं मैं सही हूँ कि गलत, हाँ, ओम जो है एक वाइब्रेशन होती है जो हम फील करते हैं, और हरे कृष्णा महामंत्र में भी वो प्रेजेंट। अच्छा, ठीक है। और कोई गौरांश बताना चाहिए? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरे हिसाब से भगवान ने गीता में कहा है कि जो अ, भगवान उसमें कहते हैं वत्सो कौन्तेय प्रभावी शशि सूर्यो प्रणव था वेदेषु पौरुष निषु। जिसमें भगवान कह रहे हैं कि जो वेदों में ओमकार है वो भी मैं हूँ। यानी भगवान का नाम ही भगवान, और आप बताते हैं कि भगवान का नाम ही भगवान के समान है, तो इसलिए भगवान का नाम कृष्ण और ओमकार दोनों एक में ही आ जाते हैं। हाँ,
इसको हम ऐसे समझ, बहुत अच्छा बताया, शब्दः खे पौरुषम अन्येषु, सॉरी, है ना। तो शब्दः खे, तो जो ओम है वो भगवान को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन हम इसको और अच्छे से समझेंगे। जो हरे कृष्ण महामंत्र है, जो भगवान का नाम है, डायरेक्टली जो नाम है भगवान का, वो भगवान से अभिन्न है। एक्चुअली वो भगवान ही है। हम अगर भगवान के नाम में और भगवान में भेद कर रहे हैं तो ये गलत फिलॉसफी है। तो एक किस बेसिस पे हम बोल रहे हैं सेम है, तो ये श्लोक आता है हमारे शास्त्रों में। नाम चिंतामणि ही कृष्णस चैतन्य रस विग्रह पूर्णः शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्व नाम नामिनो। तो जो कृष्ण का जो चिंतामणि नाम है वो क्या है? अभिनत्व नाम नामिनो, कि जो भगवान का नाम है वो भगवान से अभिन्न है। अभिनत्व नाम नामिनो हो ना। इसको हम पढ़ते हैं एक बार और समझ आएगा। द होली नेम ऑफ कृष्णा इज ट्रांसेंडेंटली ब्लिसफुल। जो आप सब कृष्ण नाम का जप कर पा रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि ब्लिसफुल है, एक हैप्पीनेस आपके सोल को मिलता है ऑटोमेटिकली, इसलिए आप भगवान के नामों का जप कर पा रहे हैं। The holy name of Krishna bestows all spiritual benedictions, for it is Krishna himself। जो कृष्ण का जो नाम है और जो कृष्ण है, हमारे केस में क्या है? जैसे आपका नाम शुभम है, सुधीर है, जितेंद्र है। तो सुधीर आपको नाम कब मिला? जन्म होने के बाद मिला ना। आपके किसने नाम दिया आपको? मम्मी ने, पापा ने, पंडित जी ने, जिसने भी दिया हो। मम्मी ने तो दिया है। है ना, जब आपका नामकरण संस्कार नहीं था तब आप कौन थे? है ना। तो भगवान को ऐसा, हाँ, भगवान का जो नाम है, हम तो अपने नाम से अलग हैं ना। गोलगप्पा बोलो, एक तो गोलगप्पा का एग्जांपल आता है, जैसे आपको गोलगप्पा खाना है तो जो आप खा रहे हो, है ना, उससे आपको टेस्ट आएगा। गोलगप्पा खाओगे तो टेस्ट आएगा, लेकिन गोलगप्पा बोलोगे तो टेस्ट आएगा क्या? नहीं आएगा। गोलगप्पा गोलगप्पा बोलोगे तो टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन खाओगे तो टेस्ट आएगा। तो जो गोलगप्पा शब्द है और जो गोलगप्पा ऑब्जेक्ट है, दोनों अलग अलग है, डिफरेंट है। लेकिन स्पिरिचुअल रियलम में जो भी चीजें होती हैं, जैसे नाम है कृष्ण, तो और जो भगवान का रूप है कृष्ण, तो आप भगवान के नामों का जप करते हैं या फिर भगवान के दर्शन करते हैं, दोनों सेम है। भगवान कृष्ण और कृष्ण जो सच जो भगवान है वो सेम है। एक्चुअली कृष्ण नाम ही भगवान है। इतनी पावरफुल बात की जा रही है यहाँ। तो भगवान का जब आप नाम जप कर रहे हैं तो आप भगवान से पर्सनली एसोसिएट कर रहे हैं, क्योंकि इट इज कृष्णा हिमसेल्फ। द होली नेम ऑफ कृष्णा इज कृष्णा हिमसेल्फ। अभिनत्व नाम नामिनो, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म। और हमारा जो नाम है उससे हम अलग हैं, लेकिन कृष्ण सेम है। कृष्णा's नेम इज कंप्लीट एंड इट इज द फॉर्म ऑफ ऑल ट्रांसेंडेंटल मेलोस। It is not a material name under any condition. It is no less powerful than Krishna himself. ये जो कृष्ण अक्षर है, ये जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये स्पिरिचुअल है। ये शब्द ही स्पिरिचुअल है। Since Krishna's name is not contaminated by the material qualities, there is no question of its been involved with Maya. Krishna's name is always liberated and spiritual. It is never conditioned by the laws of material nature. This is because the name of Krishna and Krishna himself are identical. बहुत क्लियरली इसमें बोला जा रहा है कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। और ओम क्या है? भगवान का तेज है ना, भगवान से निकलता है। तो भगवान और भगवान का नाम कृष्ण सेम है, तो जो ओम अक्षर है वो भी कृष्ण से ही निकलता है।
इसलिए जो हरे कृष्णा है उसके अंदर ओम ऑलरेडी प्रेजेंट है, और पर्सनल फॉर्म में हम भगवान को इसमें रियलाइज कर सकते हैं, जो टॉप मोस्ट रियलाइजेशन जिसे कहा जाता है ना। इसमें भी बता रहे हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ योगा टू कंसंट्रेट द माइंड ऑफ विष्णु माम अनुस्मरण। द इम्पर्सनलिस्ट इमेजिन सम फॉर्म ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, है ना। तो इम्पर्सनलिस्ट जो होते हैं, मायावादी, वो कुछ अपने मन में ही भगवान का आकार बना के इमेजिन करने का प्रयास करते हैं। बट द पर्सनलिस्ट डू नॉट इमेजिन दिस, दे एक्चुअली सी। Whether one imagines him or actually sees him, one has to concentrate his mind on the personal form of Krishna. Ananya चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः. For one who remembers me without deviation, I am easy to obtain. O son of Pritha, because of his constant engagement in devotional service. अगर हम भगवान की सेवा में, भक्तिमय सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, फॉर वन हु रिमेंबर्स मी विदाउट डेविएशन, सततम मतलब कंटिन्यूअसली, विदाउट डेविएशन, अगर हम अपनी चेतना भगवान में एब्जॉर्ब करके रखते हैं, कैसे करेंगे? भगवान के नामों का जप करके, तो श्योर है भगवान बोल रहे हैं आई एम इजी टू ऑब्टेन। अगर कोई निरंतर भगवान का स्मरण कर रहा है, जो भी चीज़ें कर रहा है भगवान के लिए कर रहा है, तो भगवान को प्राप्त करना आसान हो जाता है। वही कोई ज्ञान के, है ना, सिर्फ स्क्रिप्चर्स को स्टडी कर करके, सिर्फ गीता पढ़ पढ़ के आप भगवान को जानना चाहो, है ना, तो बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि आप गीता पढ़ोगे और रियलाइजेशन कैसे होंगे आपको? रियलाइजेशन आपको चैंटिंग से प्राप्त होंगे, गीता से आपको नॉलेज तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वो रियलाइज कैसे होगा? अगर आप अच्छे से जप करेंगे तो आपको रियलाइज भी होगा। जैसे आप कितना पढ़ लीजिए गीता में, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन एक्ट हम कैसे करते हैं? शरीर के लेवल पे ही एक्ट करते हैं। कितना भी आप 24 घंटे रटते रहिए मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, बहुत मुश्किल है स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में आना, ना सोल के प्लेटफॉर्म में आना। लेकिन अगर हम भगवान के नामों का जप करते हैं तो बहुत ही आसानी से हम उस प्लेटफॉर्म की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ज्ञान के प्रयास से, सिर्फ नॉलेज के हेल्प से हम रियलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, हम आगे रीड करेंगे लास्ट, ये आखिरी पैराग्राफ, टाइम तो हो जाएगा। कौन रीड करेंगे आज? जितेंद्र तो पढ़ते रहते हैं मोनू भी पढ़े थे कल। तो सूर्य, आप पढ़ना चाहेंगे? आपका नाम सूर्य है या सूर्या है? सूर्या, सूर्य, सूर्य है हमारे साथ। आज भी सूर्यदेव नहीं निकले। चलिए ठीक है, कौशल आप पढ़ लीजिए। Those who are satisfied with the temporary life, temporary pleasures, and temporary facilities are not to be considered intelligent, at least not according to the Bhagavad Gita. According to the Gita, one whose brain substance is very small is interested in temporary things. We are eternal, so why should we be interested in temporary things? No one wants a non-permanent solution. If we are living in an apartment and landlord asks us to vacate, we are sorry, but we are not sorry. If we move into a better apartment, it's our nature because of we're permanent to want a permanent residence. We don't wish to die because in actually we are permanent. Nor do we want to grow old or to be deceased because these are our external or non-permanent states. Although we are not meant to suffer from fever, sometimes fever comes and we have to take precautions and remedies to get well again. The fourfold miseries are like a fever and they are all due to the material body. If somehow we can get out of the material body, we can escape the miseries that are integral with it. मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी, आप पढ़े। इसमें प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं?
उसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो मान लीजिए आपको आपके घर से बाहर निकाल दिया जाता है और आपको अब सड़क पे रहना है, तो आपको इनसिक्योर फील होगा, डर लगेगा, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मेरे तो पास तो जॉब भी नहीं है ना, इतनी ठंड भी हो रही है। वो डर लगेगा आपको, घर से बाहर निकाल दिया जाए या आपके पूरे फैमिली को घर खाली करा दिया जाए, तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे, है ना। लेकिन अगर आपको घर से निकालने के बाद एक बहुत बड़ा बंगला मिल रहा है, उसमें बहुत सारे नौकर चाकर हैं, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, गवर्नमेंट जॉब वाला जो घर होता है आईएएस ऑफिसर्स का, वो मिल रहा है, तो आप खुशी खुशी अपना घर छोड़ने को तैयार हो जाएंगे। उसी प्रकार से उसी प्रकार से मृत्यु के समय हमें डर लगता है, मैं मर जाऊंगा, शरीर छोड़ना पड़ेगा ना, ये शरीर रूपी घर को छोड़ना पड़ेगा, तो हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन अगर हम ये रियलाइज़ कर लें कि भगवान भगवान का धाम एग्जिस्ट करता है और मैं मृत्यु के समय भगवान को स्मरण करूं तो भगवान को मैं प्राप्त कर सकता हूं, आजीवन भगवान की सेवा करूं, आजीवन भगवान की भक्ति करूं, तो आखिरी में मुझे अगर आजीवन आप भक्ति करेंगे तो भगवान फोर्सफुली आपके माइंड में आएंगे। और भागवतम का श्लोक है ये जो मैं बोल रहा हूँ, वो भी अगली क्लास में पढ़ लेंगे। तो फोर्सफुली जब भगवान हमारे माइंड में आ जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक स्पिरिचुअल बॉडी, हम अपने रियल पोजीशन में आ जाएंगे। जो हमारा रियल पोजीशन है स्पिरिचुअल बॉडी, जो अभी मटेरियल बॉडी से कवर्ड है, उसमें हम आ जाएंगे और डायरेक्ट भगवान के साथ भगवान के धाम में रहेंगे खुशी खुशी। वहाँ पे कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि कोई बीमारी नहीं होती, किसी प्रकार का कलेश नहीं होता, अनहैप्पीनेस नहीं होती, तो वहाँ पे हम प्रॉपरली खुशी खुशी रहेंगे। तो अगर हम ये रियलाइज कर लेते हैं तो जो भगवान का भक्त होता है उसको ज़रा भी दिक्कत नहीं होती, ठीक है ये शरीर छोड़ के मैं तो भगवान के पास ही जा रहा हूँ, उसको ज़रा भी दुख नहीं होता इस शरीर को छोड़ने के टाइम। बाकी लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं ना, मरने के बारे में सोच के ही डर जाते हैं। उनको खुशी होती होगी। हाँ, उनको खुशी होती है कि मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, फाइनली ये सबसे छुटकारा मिला, मैं जा रहा हूँ भगवान के पास। और इसमें एक और चीज़ बताई गई है, अकॉर्डिंग टू गीता वन दोस हुज ब्रेन सब्सटेंस इज वेरी स्मॉल इज इंटरेस्टेड इन टेम्पररी थिंग्स। तो ये जो भगवान का नाम है और जो भगवत गीता है ये ओपन सीक्रेट है ना? सबके सामने ये सीक्रेट भी है और सबको पता भी है भगवान का नाम क्या होता है, भगवत गीता क्या होती है, सबको पता भी है, लेकिन फिर भी ये सीक्रेट है ना। राज विद्या राज गुह्यम, गुह्यम मतलब बहुत सीक्रेट है। भगवान का नाम सबको पता है, हम संकीर्तन निकालते हैं, है ना। तो सड़क पे जब संकीर्तन निकलता है तो जोर जोर से म्यूजिकल फॉर्म में हरे कृष्णा महामंत्र का चैंटिंग करते हुए निकलते हैं, रथ यात्रा निकलती है, सबको पता लग जाता है भगवान का नाम क्या है। फिर भी वो लोग भगवान के नामों में एंटर नहीं कर पाते, उसको रियलाइज नहीं कर पाते। आप सब भगवान के नामों का जप कर पा रहे हैं, लेकिन मटेरियलिस्ट को कितना भी आप सुना दो कीर्तन, वो एंटर ही नहीं कर पाता उस मूड में। ओपन सीक्रेट है। भगवत गीता कितना भी स्कॉलर्स पढ़ लें उसमें एंटर नहीं कर पाते। तो एंटर कौन कर पाता है, जिसका भगवान के प्रति थोड़ा प्रेम है। भगवान से अगर कोई द्वेष करता है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे कि कौन भक्ति कर सकता है कौन नहीं कर सकता। तो जो भगवान से प्रेम करता है, भगवान से द्वेष नहीं करता, कम से कम एनवी नहीं करता, कम से कम न्यूट्रल भी है तो भी चल जाएगा, एनवी नहीं करता हो। जैसे जो असुर होते हैं, है ना, वो भगवान को गालियां देते हैं, है ना, विष्णु से बहुत द्वेष करते हैं, तो उस प्रकार से ना हो तो वो फिर भगवान की भक्ति आसानी से कर सकते। ठीक है, तो दो चीज़ें इसमें आ गई और टाइम भी हो गया है। इसमें आपका कोई प्रश्न है आप पूछ। जी प्रभु जी। जैसे अभी आपने पहले हमें बताया था कि हमें जो जिस जिसकी हम पूजा करते हैं उस श्लोक में हम जाते हैं, राइट। हाँ। मेरा क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दैट था कि अब जैसे सूर्य लोक भी एक है जो सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, हम्म।
तो कंफ्यूजन नहीं होता था, जैसे आपने बोला हम अगर हम तो मतलब जो अगर हम सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, जल करते हैं, तो कहीं कहीं कि फिर वहां पे आप एक हमारा पास एक और एक, जैसे आपने बताया कि वो भगवान की आंख है, हाँ तो फिर वो प्लैनेट वाला सीन, वो तो प्लैनेट वाला वो और ये चीज थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर देती, क्योंकि वो भी तो गॉड ही है, इवेंचुअली सब कुछ तो बिलोंग्स टू गॉड ओनली। तो हाँ वैकुंठ जो हाँ, बाइफर्केशन, सही बात है। तो फिर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं रहता? ये क्लियर हो जाएगा, भगवत गीता में श्लोक आता है। अच्छा ठीक है। अविधि पूर्वक मैं शेयर करता हूँ। तो ये अभी आपको शेयर होगा अभी। हाँ, ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि माम एव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। तो अविधि पूर्वकम इसमें बोला जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये अपि अन्य देवता भक्ता, जो अन्य देवताओं की भक्ति करते हैं, दोज हु आर डिवोटीज ऑफ अदर गॉड्स एंड हु वर्शिप देम विद फेथ actually worship only me, O son of Kunti, but they do so in a wrong way। तो जो भी जैसे आप किसी की भी भक्ति करते हैं, दुर्गा माता हो गई, सूर्यदेव हो गए, या फिर चैरिटी करते हैं, तो एक तरह से आप अ, भगवान की ही इनडायरेक्टली भगवान की ही सेवा कर रहे हैं। लेकिन ये तरीका को क्या बोला गया? अविधि पूर्वकम। ये विधि पूर्वक नहीं है। कैसे है ये? क्योंकि ये जो भी यूनिवर्स का मैनेजमेंट सिस्टम है, ये भगवान के अकॉर्डिंग चल रहा है। सूर्यदेव को पोजीशन पावर कौन दिए? भगवान दिए मैनेजमेंट करने के लिए। वैसे इंद्रदेव को बारिश का मैनेजमेंट करने के लिए और स्वर्गलोक का मैनेजमेंट करने के लिए उनको वो पोजीशन मिली है। तो ये जो पोजीशन भी मिली है, ये यूनिवर्सल मैनेजमेंट को अच्छे से चलाते रहने के लिए सबको पोजीशंस मिली है। और सब किसके रिप्रेजेंटेटिव हैं? सब भगवान के ही रिप्रेजेंटेटिव। तो अ, और जो भी पावर्स इनको मिलती है, पावर्स भी कौन देते हैं? भगवान ही देते हैं। जो भी पावर्स रिक्वायर्ड होती है बारिश कराने के लिए, सूर्य उगाने के लिए, जो भी पावर्स रिक्वायर्ड होते हैं, सब भगवान से ही आती है। तो ये जो जो भी शक्ति की भी जो पूजा करता है, वो भगवान की शक्ति की ही पूजा करता है। लेकिन भगवान इसमें बोल रहे हैं कि ये अविधि पूर्वकम है। ये मुझे डिजायर करते हुए, मुझे प्राप्त करने के लिए पूजा नहीं कर रहा। ये अपनी मटेरियल डिजायर्स की इच्छाओं को पूरे करने के लिए ये कर रहा है। इसलिए ये उनके वो रिप्रेजेंटेटिव के पास तक बस जा पाते हैं, डायरेक्टली भगवान के पास नहीं जा पाते। और ये अविधि पूर्वकम है। तो आप किसी देवी देवताओं को भी, इसलिए आप जाएंगे जब जगन्नाथपुरी जाएंगे, तो सबसे पहले जगन्नाथ जी को भोग लगता है। फिर आकर के बाहर किनको भोग लगता है? जगन्नाथ जी का प्रसाद सबसे पहले किन के पास जाता है, पता है किसी को? अब पार्वती माता जी के पास। हाँ, बिमला देवी। तो उनके बाद जगन्नाथ जी का प्रसाद बिमला देवी के मंदिर में जाता है। फिर उसके बाद पूरी दुनिया में बढ़ता है। तो लेकिन अगर जो अ, सिर्फ दुर्गा माता के भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं? वो सीधा दुर्गा माता को भोग लगाते हैं, है ना, उनकी पूजा करना चाहते हैं। और हम भगवत गीता कोट करके बोलें कि ये अविधि पूर्वकम है, विधि पूर्वक नहीं है, डायरेक्टली किसी देवी देवताओं की पूजा करना, तो फिर वो फिर एनवियस हो जाते हैं, तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो सब लोग अलग अलग देवी देवताओं से अटैच्ड हैं। इसके ऊपर बहुत डिटेल में दो दो क्लासेस लग जाती है। अभी वीकेंड्स में जो स्पेशल क्लासेस आएंगी उसमें कवर होगा। जो फेथ भी होता है डेमिगॉड्स को पूजा करने का, वो फेथ भी भगवान प्रोवाइड करते हैं। ये भी भगवत गीता में श्लोक आता है। जो अलग अलग देवी देवताओं के लिए जो प्रेम आ जाता है ना, कि दुर्गा माता के लिए बहुत लव अफेक्शन आ गया, तो वो भी भगवान ही प्रोवाइड करते हैं, जो फेथ है। लेकिन उनका डेमिगॉड्स को वर्शिप करने का बेसिस तो मटेरियल डिजायर ही होता है ना। जो जिसको बहुत पढ़ने की इच्छा है, विद्या चाहिए, तो सरस्वती माता की पूजा करने लग जाता है, वो सरस्वती मंत्र का जाप करता है। इस प्रकार से मटेरियल डिजायर्स के बेसिस पे अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होती है, जो गलत है, अविधि पूर्वकम है। मटेरियल डिजायर्स के लिए हमें नहीं करना चाहिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए।
जी जी बाबा जी। हाँ और एक चीज और, तो जैसे कल आपने जो कल बताया था कि ये जस्ट फॉर माई नॉलेज, कि जो गॉड को जो तीन फॉर्म्स में, एक तो फॉर्म है जो हम देखते हैं में वो अपने जिससे वो मतलब जो उसको जो स्टेज है उसको आई फॉरगेट द नेम, जहाँ पे लेटे हुए हैं। हाँ, वो एक्चुअली वो जब मटेरियल क्रिएशन होता है तो तीन प्रकार के विष्णु होते हैं। भगवान सबसे पहले बहुत सारे एक्सपेंशंस है ना। सबसे पहला एक्सपेंशन है भगवान का संकर्षण, नाम है उसका, है ना, संकर्षण। फिर नारायण, ऐसा ऐसा एक्सपेंशन है। फिर एक आगे चल के एक्सपेंशन आता है महाविष्णु। हाँ फिर महाविष्णु जो एक्सपेंशन है, और जब यूनिवर्सल क्रिएशन होता है तो इसी में तीन प्रकार के एक्सपेंशंस होते हैं: कार्णोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो हम सबके जो हार्ट में परमात्मा के रूप में विराजमान है, आता है ना श्लोक, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान हम सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। तो उस विष्णु का नाम है क्षीरोदक्षाई विष्णु। ओके। और जो अलग अलग यूनिवर्सेस हैं, है ना, बहुत अनगिनत मटेरियल यूनिवर्सेस हैं, उसमें जो विष्णु है वो है गर्भोदक्षय विष्णु। उस मटेरियल पर्टिकुलर यूनिवर्स के जो विष्णु है गर्भोदक्षय विष्णु। और जो ओरिजिनल जो विष्णु है कारणोदक्षय विष्णु, जिनसे सारे मटेरियल यूनिवर्सेस निकल रहे हैं। जो हमने एग्जांपल लिया था, एक दीवार में छेद है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स जैसे उस छेद से निकल जाते हैं, उसी प्रकार से महाविष्णु जो विष्णु है कारणोदक्ष विष्णु, उनके शरीर के जो छिद्र हैं उसमें से बहुत मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस निकलते हैं। तो इसमें इसमें इनको कोई रिप्रेजेंट किया डिफरेंट टाइप से, जस्ट जस्ट फॉर माय नॉलेज, की जैसे कि अभी हमने अभी ये डिस्कस किया कि दैट टू टाइप्स, एक तो है जो भगवान के निराकार रूप को मानता है, एक भगवान के रूप को मानते हैं, राइट? तो उसमें हाँ कंफ्यूजन है। इसमें अगर इन तीनों में किसी तरह से हमारे स्क्रिप्चर्स में डिस्क्राइब किया है कि जैसे आपने एक तो बता दिया, एक तो हमें डिस्क्राइब किया, हम देखते हैं विष्णु भगवान जो शेषनाग के ऊपर जो जो हाँ जिस जिस होते हैं, और एक है जो उन्होंने अर्जुन को जो अपना रूप विराट रूप हाँ दिखाया था, तो वैसा कुछ डिस्क्रिप्शन है इन हाँ, इन इन पूरा तीन? क्लियर, पूरा क्लियर डिस्क्रिप्शन है। हम एक सेशन रखेंगे, गॉड पर्सनल है या इम्पर्सनल, टॉपिक यही रहेगा। वीकेंड वाला सेशन है, उसमें ओके। हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। भगवत गीता में ही पूरा क्लियर डिस्क्रिप्शन है। ठीक, ठीक है, हम एंड करते हैं यहाँ पे। हरे कृष्ण।